Good morning. Today my presentation topic is transport equation and its initial value problem. First, we will define what is transport equation. Transport equation is of the form ut plus v du is equal to 0 with constant coefficients. Here we can say that all the variables lies in the interval Rn cross 0 to infinity. Okay. Where v is the fixed or constant vector and also in the form of v is equal to v1, v2 up to so on vn. U is a unknown function. Also u lies in between Rn cross 0 to R interval. X be any typical point in space which lie in n Euclidean space यानी कि Rn में बिलोंग करता है. x is equal to x1 up to x2 up to so on xn. Also we can say that t is greater than 0 denotes typical time. We can say that here du is a gradient of u. Du is a gradient of u or with gradient of u with respect to x, or du is equal to dxu, which we can write ux1 ux2 up to so on uxn. So we can say that this is known as transport equation of with constant coefficients. Now we have to discuss about its initial value problem. Initial value problem. In this initial value problem, first we consider the homogeneous linear initial value problem. We consider the transport equation as ut plus v du is equal to 0 equation 1, where we know that all the coefficients or constant coefficients, variable coefficients lies in Rn cross 0 to infinity. Let us consider boundary, initial boundary condition u is equal to g, where जो बाउंड्री कंडीशन है वो किस पे है, Rn क्रॉस t इज इक्वल टू 0. जो भी जहाँ पे जो टाइम इंटर हमारा होगा वो क्या होगा, 0 को कंसिडर करते हैं. जो v हमें पता ही है, v जो है v बिलोंग्स टू Rn है, जो कि n यूक्लिडियन स्पेस को बिलोंग करता है. g इज अ नॉन फंक्शन which lies Rn to Rn. हमें u इज इक्वल टू uxt कंप्यूट करना है. We have to compute u is equal to uxt because to find the initial value problem. Solution. First let x comma t be any fixed point, be any
fixed point in Rn क्रॉस 0 to infinity, यानी कि xt हमने कोई भी फिक्स पॉइंट ले लिया जो कि इस इंटरवल में लाई करते हैं. नाउ वी हैव कंसिडर्ड द लाइन थ्रू x, t with direction v, 1. हमने एक लाइन कंसीडर करी है x, t जिसको हमने डायरेक्शन दी है v, 1 जो कि पैरामीट्रिकल है. नाउ we represent x and t in the form of parametrical, so we can write x as x plus sv as a line equation and t, s equal to t plus 1 into s, where s जो है वो बिलोंग करता है R में. The line becomes x plus sb, t plus s, where s belongs to R. Now this line hits the plane gamma Rn क्रॉस t is equal to 0, यानी कि ये जो लाइन है वो इस प्लेन को क्या करेगी, हिट करेगी एट पॉइंट x minus tb, 0. Here we get this point by putting t is equal to minus s in this equation star. So if we put t is equal to minus s, so we get x minus tb, t minus t, so x minus tb, 0. So we get this point. We now define a function z r to r. हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया z जो कि r से r इंटरवल में बिलोंग करता है. Now if we can write z in parametrical form, यानी कि z as equal to u, x plus sb, t plus s, जो वहाँ जहाँ पे जो s कहाँ बिलोंग करता है, r इंटरवल में, r में बिलोंग करता है. अब हम अगर इसको कंपेयर by putting the point double star which is x minus tb, 0 in equation in the boundary condition, यानी कि हम जो ये इक्वेशन है, जो हमारे पॉइंट्स हैं, उसको हम इस बाउंड्री कंडीशंस में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा. इस बाउंड्री कंडीशन में ये है कि t जो है वो 0 को इक्वल है, यानी कि t की जगह हम क्या रखेंगे, u, x, t इज इक्वल टू g है, तो क्या रखेंगे, x की जगह तो ये पॉइंट हो गया x माइनस tb, t की जगह 0 इज इक्वल टू g, जो कि यहाँ x है तो x की जगह x माइनस tb आ जाएगा. वेयर जो x बिलोंग करता है वो Rn को है और जो t है वो टिपिकल पॉइंट है, टिपिकल टाइम है विच इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो वी कैन से दैट द गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हैज़ ए सॉल्यूशन
u इज इक्वल टू यू एक्स टी, यानी कि इसका जो सोल्यूशन मिला है वो इक्वेशन 4 में हमें मिला है। आफ्टर द डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वेशन जेड एस इक्वल टू यू एक्स प्लस एस बी टी प्लस एस, अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी, जो कि इक्वेशन नंबर 1 से भी कंपैरिजन करने पे हमें बिल्कुल उसके जैसी नज़र आती है। यू टी प्लस बी डी यू इज इक्वल टू 0। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे हमने x प्लस एस बी टी प्लस एस पॉइंट्स रखे हुए हैं। सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज यू टी प्लस वी डी यू इक्वल टू 0। इट मीन्स अगर z का डेरिवेटिव 0 आ गया तो इसका मतलब जो जेड एस है वो कांस्टेंट रहा होगा, मस्ट बी कांस्टेंट। सो वी कैन से दैट u इज अ कांस्टेंट फंक्शन ऑन लाइन एक्स एस और टी एस। नाउ कन्वर्सली वी कैन से दैट जो हमारे पास कंडीशंस है इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स की, दिस वन यू टी प्लस वी डी यू इज इक्वल टू 0 जो कि ट्रांसपोर्ट इक्वेशन एंड है और u इज इक्वल टू जी जो कि हमारे पास इनिशियल बाउंड्री कंडीशन है। अगर हम इट इज़ ईजी टू चेक डायरेक्टली इफ इट इज़ ईजी टू चेक डायरेक्टली इफ g इज इन C1, यानी कि g अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन में है देन u डिफाइंड y, जो हमारे पास कंडीशन है, जो हमारे पास सोल्यूशन आया है u x कोमा टी इज इक्वल टू जी एक्स माइनस टी बी, वेयर x belongs to Rn and t is greater than equal to 0। ये हमारे पास अगर g C1 कॉम्प्लेक्स प्लेन को बिलोंग करता है तो हम इजीली कह सकते हैं विच जो हमारा सोल्यूशन आया है वो इंडीड सोल्यूशन है। सो दिस इज अ प्रूफ ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ऑफ होमोजेनियस ट्रांसपोर्ट इक्वेशन।